Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. Hope you're doing well. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. So this says Manchester United Football Club (MFC) has four strikers: Lukaku, Rashford, Martial and Zlatan. Oh, by the name Zlatan, we all remember Zlatan Ibrahimovic, and you specifically remember that 30-yard bicycle kick with England, if I am not wrong. That was one hell of a moment. Okay, let's not get carried away. So, only one striker could be playing 11, could be in the playing 11 for the Champions League final again against Football Club Barcelona. Right. So there are these four players: LR, M, and Z. Right. In order to select the striker, the manager of the MFC decided to evaluate the performance of the four strikers in four penalty shootouts: PS1, PS2, PS3, and PS4 conducted in that order. Only the strikers who have cleared a penalty shootout, that is, scored at least one goal, are eligible to take the next penalty shootout. So, for example, if there are these four penalty shootouts, क्या कंडीशन लगा रखी है? A player can take part in the next penalty shootout if he has scored at least one goal in the previous penalty shootout, right? Now, moving on. Initially, each of the four penalty shootouts is scheduled to have exactly 3 attempts per striker at goal. So, initially जो पहला आपका PS1 penalty shootout 1 होने वाला है, उसमें total number of attempts कितने हैं? 3 shotted goals. That is exactly 3. However, for each striker, based on his performance, now what do I mean by performance here? That is very important. That is the number of goals scored in each of the penalty shootouts, right? The number of attempts at goal in each of the subsequent penalty shootouts are revised as per the following criteria. Now, what does this statement mean? This simply says कि जैसे first round का तो आपका fix है, that is the total number of attempts has to be 3. Subsequent rounds में the number of attempts a player will get depends on the performance in the previous round. Now, there are certain rules on the basis of which we'll decide the number in the subsequent round, and there are two rules basically. Let's read them. In any penalty shootout, if the number of goals scored by a striker is at least 50%, at least half, बट नॉट 100%, राइट? 100% से कम होना चाहिए. दैट इज, लेट्स से अगर फर्स्ट राउंड की आप बात करो, फर्स्ट राउंड में 50% मतलब 1.5 से इक्वल या फिर ज्यादा होना चाहिए. तो ऑब्वियसली 1.5 तो नहीं हो सकता नंबर ऑफ गोल्स. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से 2 गोल्स. सो 2 या फिर आपका उससे अबव, लेकिन टोटल से कम होना चाहिए. तो 2 ही एग्जैक्टली फिर आपका होगा, राइट? सो फर्स्ट राउंड के लिए 2 कंडीशन बन जाएगी. बट मे बी आगे जाके जब आपका नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेगा, so we'll have multiple possibilities as well, right? So 50% के equal and above होना चाहिए and 100% के नीचे होना चाहिए. If you are meeting this particular criteria, the total number of available attempts at goal after all applicable revisions, he gets a bonus attempt at goal in each of the subsequent penalty shootout. Now in each of the subsequent penalty shootout, मतलब let's say for example first round में total आपने क्या करा, 3 अटेम्प्ट लिया, ठीक है? नाउ 3 अटेम्प्ट में सपोज मैं बोलता हूं कि 3 में से आपने 50% तो वैसे भी 1.5 है, उससे ऊपर जाना पड़ेगा. दैट मीन्स 2 गोल आपने स्कोर करे, राइट? नाउ बिकॉज आपने 2 गोल स्कोर करे ना, एंड 100% से लेस मतलब पूरा नहीं स्कोर करा, वो आपका सेकंड कंडीशन में समझ में आएगा. तो 3 नहीं स्कोर करा, 2 एग्जैक्टली स्कोर करा, तो पहली कंडीशन मीट हुई. सो सब्सिक्वेंट राउंड में, हर सब्सिक्वेंट राउंड में आपको इसकी वजह से एक एडिशनल आपको अटेम्प्ट मिलेगा. सो नॉर्मली आपका 3 होता फर्स्ट राउंड में, बट अगले राउंड में क्या हो जाएगा, आपका 4 अटेम्प्ट्स मिलेगा. एंड अगले राउंड में भी आपका 4 तो डेफिनेट रहेगा, तो वो फिक्स हो गया. फिर आपको अगले राउंड में इस फर्स्ट राउंड के परफॉर्मेंस की वजह से 4 तो मिलना ही मिलना है, राइट? आई होप दिस इस पार्ट क्लियर. हाँ, अभी आप बोलोगे कि हाँ भाई थर्ड राउंड में एग्जैक्टली क्या 4 ही रहेगा? नहीं, थर्ड राउंड में नंबर और बढ़ भी सकता है, एंड दैट डिपेंड्स कि 4 में से आप कितना एक्चुअली गोल स्कोर करोगे. तो इसका 50% यहाँ से 2 आएगा, तो 2 एंड अबव होना चाहिए, बट 4 से कम होना चाहिए. सो इफ आई स्कोर लेट्स से 2 गोल्स इन दिस 4 अटेम्प्ट्स, 2 या फिर 3, तो यहाँ पे भी आपका 4 की जगह फिर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा. एंड वही इफेक्ट आपका अगले राउंड में भी जाएगा, दैट इज 5. एक एक्स्ट्रा आपको हर राउंड में मिल जाएगा.
देन वही सेम कहानी आपकी आगे कंटिन्यू होगी। थर्ड राउंड में डिपेंड करेगा कि आप 50% से ज्यादा स्कोर कर रहे हो कि नहीं, एंड 100% से लेस अगर कर दिया तो उसके बाद भी आपको सब्सिक्वेंट राउंड में एक और अटेम्प्ट मिल जाएगा, तो लेट्स से यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द रूल लुक्स लाइक, राइट। तो आपको रूल बहुत क्लियर रखना पड़ेगा बिफोर यू मूव ऑन टू सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ there is one more rule. What happens when you score all the goals in all the attempts of that particular penalty shootout? So this says in any penalty shootout, if a striker scores in all the possible attempts at goal after all the applicable revisions, then he gets 3 bonus attempts at each goal in each of the subsequent possible attempts. वही कहानी, जैसे फर्स्ट राउंड में आपने टोटल 3 अटेम्प्ट्स करे, इफ यू स्कोर ऑल द 3 गोल्स राइट इन ऑल द 3 अटेम्प्ट्स, तो आपको सब्सिक्वेंट राउंड में, हर सब्सिक्वेंट राउंड में आपको 3 एडिशनल मिल जाएगा। दैट मीन्स ये गारंटी हो गया कि आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेनल्टी शूटआउट में 6 तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड बाय द प्रीवियस लॉजिक एज वेल, अगर आपने सेकंड राउंड में 6 में से भी आपने लेट से सारा 6 पूरा गोल स्कोर कर दिया, तो आपका थर्ड राउंड में फिर 3 और बढ़ जाएगा। एंड द सेम विल बी ट्रू फॉर फोर्थ राउंड एज वेल, कि यहाँ पे भी 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका फिर 9 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल द लॉजिक टू दिस पर्टिकुलर सेट। Now this is a little case work, आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाना पड़ेगा, you cannot do anything in this particular case. Now points के बारे में यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। This says in any penalty shootout for each goal scored a striker is awarded 10 points by the manager and for each failed attempt at goal he is penalized 3 points by the manager. तो now points की बात हो रही है कि आपका टोटल एक गोल स्कोर्ड पे 10 पॉइंट्स मिलेगा और फेल्ड पे कितना 3 पॉइंट्स कम हो जाएगा। द सेम पॉइंट स्कीम इज फॉलोड फॉर ऑल द अटेम्प्ट्स एट गोल इंक्लूडिंग द बोनस अटेम्प्ट्स, ठीक है। द स्ट्राइकर विद मैक्सिमम पॉइंट्स इन ऑल द 4 पेनल्टी शूटआउट्स पुट टुगेदर विल बी सेलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ स्ट्राइकर इन द प्लेइंग 11। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट आवर स्ट्राइकर एट द 11 at the Champions League final against the football club Barcelona. Now let's do this question by question. Now let's start with the first problem. Now let's read this. If Zlatan scored 34 points in the second penalty shootout and less than 24 attempts at goal in all the 4 penalty shootouts put together, less than 24, then at most how many points we are talking about maximizing? That at most how many points he could have scored in the third penalty shootout. Now how do I go about this? So सबसे पहले क्या करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं। Let's say I have 4 penalty shootouts, PS1, PS2, PS3 and PS4. क्या दिया हुआ है? He scored 34 points in PS2. तो यहाँ पे पॉइंट स्कोर्ड कितना हो गया? 34. Now अगर आप नोटिस करो, जैसे कि फर्स्ट राउंड में तो आपका टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो फिक्स है, दैट इज 3। सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट्स आपका क्या पॉसिबिलिटीज ले सकता है? सो इफ यू आस्क मी, सेकेंड राउंड में क्या हो सकता है? आपका इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर सेम रह सकता है। अगर सेम रहेगा तो या तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रह जाए, या फिर आपका 1 से बढ़े, वही 50% आपने जो कंडीशन नीड करी 50% एंड अबव, और 100% से लेस, तो यहाँ पे 4 भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने 100% स्कोर कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना 3 से बढ़ गया, दैट इज डायरेक्टली 6, राइट। सो दिस इज हाउ द कंडीशन लुक्स लाइक। नाउ कौन सा इसमें से होगा, दैट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेनी पॉइंट्स। नाउ 3 अगर आपने टोटल अटेम्प्ट करे, अगर आपने सारे में भी गोल मार दिया, तो आपको 3 × 10 30 मिलेगा। दैट मीन्स आई कैन से दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट 4? अगर आप 4 अटेम्प्ट्स लेते हो तो क्या आप 34 पॉइंट्स बना सकते हो? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको देखो 30 क्रॉस करना है ना, तो आपने एटलीस्ट 4 गोल्स तो मारे ही होंगे, राइट। बट 4 के 4 आप गोल्स मार दिए, तो फिर आपका वो 40 से 6 रिडक्शन कहाँ से लेके आओगे? तो 4 भी आपका पॉसिबल नहीं है। 6 के साथ अगर हम केस बनाए तो यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, बिकॉज 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 राउंड्स में आपने 10 10 10 10 स्कोर करा, और 2 राउंड्स में फिर आपने 3 and 3 लूज करा, राइट। तो 40 माइनस ऑफ 6, फिर आपका ये 34 सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ द केस लुक्स लाइक। नाउ अब अगले राउंड में आपका एक्चुअली में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होगा कितना, ये अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 24 अटेम्प्ट्स इन ऑल होना चाहिए, ठीक है। नाउ 3 में से आपने 3 अटेम्प्ट यहाँ पे लिया है, 6 अटेम्प्ट आपने यहाँ पे लिया है, तो देखो यहाँ पे 6 तो होता ही होता, क्योंकि 3 के बाद आपने 100% स्कोर करा, तो 6 यहाँ पे भी होगा, 6 यहाँ पे भी होगा, 6 आपका यहाँ पे भी होगा, ये तो गारंटीड है। बट बिकॉज सेकेंड राउंड की आपकी इंफॉर्मेशन है फॉर ज़लाटान
तो 6 में से इसने 50% से ज़्यादा में स्कोर किया, राइट। 50% आपका 3 एंड अबव होना चाहिए था। दैट मीन्स इसको यहाँ पे एक एडिशनल मिलेगा, तो एक्चुअली 6 की जगह ये दोनों राउंड्स में 7 एंड 7 तो आना ही पड़ेगा। नाउ इफ आई चेक कि यहाँ पे बिकॉज आपको मैक्सिमाइज कर रहा है ना यहाँ पे, तो क्या और नंबर यहाँ पे जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करो आपको ये भी कंडीशन ट्रू रखनी है, लेस देन 24 इन टोटल, राइट। सो क्या यहाँ पे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो आप मैक्सिमम चाहोगे कि हो जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप चाहोगे मैक्सिमम स्कोर बन जाए, बट इसके करस्पॉन्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज आप लेट्स से थर्ड राउंड में 100% स्कोर कर दिए, तो फिर इसका ये मतलब कि यहाँ पे सीधे +3 हो जाना चाहिए था। तो अगर आप अभी का एडिशन देखो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, तो 3 + 6 + 7 + 7 है, तो कितना हो गया? 9 + 7 दैट इज 16, 16 + 7 बिकम्स 23, और आपको इसने स्पेसिफिकली बोल रखा है लेस देन 24, तो इतना तो बेयर मिनिमम होना था, बट ये भी बोल रहा है कि वो 24 से नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स आई कैन नॉट इंक्रीज दिस एनी फर्दर। तो मैं चाहता तो था कि भाई इस राउंड में मैं बोलूँ कि सारे के सारे मैंने गोल स्कोर कर दिए सारे अटेम्प्ट्स पे, तो 7 का सीधा 70 बन गया, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर इधर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा दिखता, बट दैट इज नॉट अलाउड, राइट। तो बहुत अच्छा सेट बना रखा है, एवरी पीस फिट्स परफेक्टली लाइक अ जिक्सॉ पजल, राइट। सो बिकॉज यहाँ पे मेरा ना एक्चुअली में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज ही नहीं हुआ है, 7 का 7 रखना पड़ेगा। दैट मीन्स इस थर्ड राउंड में अटेम्प्ट 7 है, बट आपका 50% से बिलो होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड। तो 7 में अगर आप 50% से नीचे करोगे, तो आई वुड बी एबल टू से कि 3 आपने स्कोर करे होंगे गोल्स, और 4 बार आपने लूज करा होगा, तो 4 × -3, तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा? 30, और 4 × -3 से 12 डिडक्ट हो जाएगा, एंड यू विल एंड अप विद द 18 गोल, एंड दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, right? So this is very analytical in nature, so I hope you have understood this. Now let's move on to the second problem. Now let's use a different color, so this will be clear. I'm not rubbing the previous parts. Now second point, if Lukaku scored 31 points in the third penalty shootout, then points scored by him in the second penalty shootout cannot be. So we'll have to check for the options. 3 इसमें से पॉसिबल होंगे, एक आपका पॉसिबल नहीं होगा. So let's do this again. So there are 4 rounds. Lukaku scored 31 points in the third. So यहाँ पे उसका टोटल कितना है? 31 points है. Now 31 points आप कैसे स्कोर कर सकते हो? 31 points अगर आप नोटिस करो आप कैसे स्कोर कर सकते हो? एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 4 बार तो 10 डालना ही पड़ेगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट करके 31 पे आओगे. 3 बार 10 होगा तो फिर उससे पीछे 30 से नीचे जाने लगेगा. सो आई कैन फॉर गारंटी से कि यहाँ पे एटलीस्ट 4 तो 10 होने ही होने, 10 10 10 और 10. नाउ 31 पे आने के लिए 40 के बाद आपको एटलीस्ट 3 बार आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो -3 और -3 ये तो गारंटीड है. मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बेरे मिनिमम मेरे 7 अटेम्प्ट तो होने ही है, राइट. दैट इज वन वे टू गेट दैट 31. इससे ज्यादा जा नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे ना इस राउंड में अगर आप एक भी 10 और बढ़ाए, पहले तो एडजस्ट होगा नहीं, क्योंकि आप एक 10 बढ़ाओगे तो 50 हो जाएगा. 50 से फिर आपको 19 का डिक्रीज 3 के मल्टीपल में नहीं मिलेगा, राइट. ऑल्सो वो नंबर ऑफ 3s बढ़ जाएंगे, उसमें सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा. दैट मीन्स और एक और 10 बनाना पड़ेगा. तो ये जो नंबर ऑफ 10s है वो 3 को भी इंक्रीज करते हैं. बट प्रॉब्लम ये है ना कि थर्ड राउंड में आप कितना भी पीछे अच्छा परफॉर्म किए हो, वो आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ले नहीं पाओगे. बिकॉज अगर मैं जैसे सोचूं मैक्सिमम अटेम्प्ट मेरे थर्ड राउंड में क्या हो सकते हैं किसी भी सिनेरियो में, अगर इन जनरल देखो, फर्स्ट राउंड में आपने 3 करा, लेट्स आपने 100% पूरे गोल्स मार दिए, तो अब मैक्स टू मैक्स क्या होगा आपका? इस राउंड में आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ तो 6 होगा ही होगा. इस राउंड में भी अगर आपने पूरे के पूरे 100 स्कोर कर दिए सेकंड में, तो एट बेस्ट ये आप कितना ले जा पाओगे? 9 से ऊपर थर्ड राउंड में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किसी भी तरीके से नहीं जा सकता. तो मैं बोल सकता हूँ कि यार यही आपका सिनेरियो होने वाला है. दैट इज थर्ड राउंड में द टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वुड हैव बीन 7, एंड दिस इज हाउ ही वुड हैव स्कोर्ड हिज गोल्स सच दैट 31 उसका पॉइंट्स आया, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ what do we have to figure out? Then the points scored by him in the second round cannot be. तो यहाँ पे आपको एक्चुअली पॉइंट्स निकालना पड़ेगा. तो आपको ना पहले केस वर्क करना पड़ेगा कि अगर आप थर्ड राउंड में 7 अटेम्प्ट्स ले रहे हो, तो सेकेंड राउंड में एक्चुअली में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं. तो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि देखो फर्स्ट राउंड में तो 3 फिक्स है, सेकेंड राउंड में मैं इसको 3 पे नहीं रख सकता. क्यों नहीं 3 रख सकता?
बिकॉज अगर आप इसको 3 रखोगे तो आप मैक्सिमम फिर 3 के बाद 3 का इंक्रीज कर पाओगे 100% गोल स्कोर करके, तो ये 6 जा पाएगा। दैट मीन्स यहाँ 3 नहीं है, सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फिर आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। लेट्स से अगर ये 1 से बड़ा, वही 50% एंड अबव वाला केस एंड 100% से लेस, तो ये 4 चला जाएगा, और इस 4 में आप पूरे के पूरे गोल स्कोर कर दो 100%, तो आपका 3 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 7 पे पहुंच जाओगे। कैन वी हैव एनी अदर केस? यस, 3 के बाद लेट्स से मैंने 4 पे नहीं पहुंचा, अगर मैं डायरेक्टली इसमें पूरा ही के पूरा सारे गोल स्कोर कर दिए, राइट। सो 3 की जगह आपको 3 एडिशनल मिले बोनस, तो 6 पहुंच गया। 6 के बाद आपने वो 50% वाला क्राइटेरिया मीट कर दिया, जिससे आपका एक बोनस मिला एंड यू एंडेड अप विद अ 7। सो दीज आर द 2 केसेस विद विच वी कैन रीच 7 अटेम्प्ट्स इन द थर्ड राउंड। नाउ बात अभी खत्म नहीं हुई है, अब आपको इसमें क्या करना है, द पॉइंट स्कोर्ड इन द सेकेंड राउंड। यहां वाले राउंड में पॉइंट स्कोर्ड क्या नहीं हो सकता है, जैसे कि इफ आई लुक एट द ऑप्शंस एंड सर्टेन नंबर्स इन देम एंड ऑल्सो दीज 2 केसेस, जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो 4 से ये 7 तभी पहुंचेगा डायरेक्टली जब 3 का जंप होगा। 3 का जंप कब होगा? जब मैं 4 के 4 पूरे अटेम्प्ट कर दूं, गोल्स मेरा स्कोर्ड हो जाए 4। तो 4 into 10 कैन एक्चुअली बी द फर्स्ट सिंपलेस्ट केस। 4 into 10 40 आपका पॉसिबल है, राइट। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर विच कैन नॉट बी। तो ये हो सकता है 40 आप तुरंत से बना सकते हो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? यस, 6 वाले में अगर आप नोटिस करो 6 से आपका देखो 7 आया, राइट। सो दीज आर 6 चांसेस। पहले आप रिप्रेजेंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 चांसेस से आपका 7 पे पहुंचा, मतलब आपने वो 50 वाला परसेंट वाला क्राइटेरिया मीट करा होगा, बट सारे नहीं स्कोर करे होंगे, नहीं तो 3 से बड़ा होता। दैट मीन्स एक पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, आप तीनों में 10 स्कोर करो और 3 बार आपका -3, एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आपका एक और बढ़ा दो इसको 10 और यहाँ पे -3 एंड -, ये दोनों ही केस में आपका क्राइटेरिया मीट कर जाएगा। तो यहां से अगर आप नोटिस करो आपका क्या हो जाएगा, 10 3 30, 30 -9, 30 -9 वुड बी 21, तो 21 भी एक्चुअली में पॉसिबल है। अगर मैं ये वाले केस पे आऊं तो 10 10 10 10 40, 40 -6, 40 -6 इज ऑल्सो 30, तो ये भी आपका एक्चुअली में पॉसिबल है। एक और एक्चुअली में नंबर पॉसिबल था, अगर मैं 5 बार 10 10 10 करता और एक बार -3 करता, बट उससे फिर आपका क्या होता, 50 50 -3 would have been 47, so 47 would also have been possible, but वो तो ऑप्शंस में नहीं है, वो हमारी हेडेक भी नहीं बनती। Hence 45 cannot be scored and that becomes our correct answer, right? So I hope you have understood this particular problem also. Now let's move on to the third problem. Now what does this say? If Rashford had a total of 24 attempts at goal in all of the 4 penalty shootouts put together, then he could have scored a maximum of, now this is more analytical in nature, so उसको सोचते हैं पहले। So Rashford had a total of 24 attempts at goal, तो सबसे पहले आपको वो 24 कैसे बनेगा, you'll have to figure this out. So let's say 4 आपके टोटल अटेम्प्ट्स हैं, 24 बनाना है। फर्स्ट राउंड का तो यार आपका फिक्स ही है कि इसमें कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। नाउ आपको इसमें ना डिफरेंट पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी कि एड अप करके तीनों बचे हुए राउंड्स का एडिशन कितना आ जाए, 24 - 3 21। सो एक सिंपलेस्ट केस तो मेरे को यहाँ पे दिखता है 3 है, तो 6 7 8, 6 7 8 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मिडिल नंबर आपका 7 होगा, 7 × 3 से 21 आ जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट केस, इट विल रिक्वायर अ बिट ऑफ हिट एंड ट्राई। सो 3 के बाद क्या हो जाएगा आपका एक केस 6, क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि 3 के बाद सारे के सारे स्कोर कर दो 3, तो 6 पे पहुंच जाएगा। 6 के बाद आपका एक का इंक्रीमेंट ले लो 50% वाला कंडीशन मीट करके, तो 6 7 एंड 8, दिस इज वन कंडीशन। इसके अलावा क्या हो सकता है, लेट्स से अगर मैं 3 के बाद एक मे बी अगर मैं 6 पे ही पहुंचूं, अब 6 के बाद आपका देखो 7 और 8 था, इसमें अगर मैं 7 को 6 ही रहने दूं और 8 को 9 बना दूं तब भी तो पॉसिबल होगा, बिकॉज एडिशन तो वही रह जाएगा, राइट, बिकॉज इनका एडिशन 15 है। मैं 6 की जगह इस 6 में वो मे बी वो 50% वाला क्राइटेरिया ही मीट ना करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे बस 50% से कम स्कोर करूं, तो मेरा इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पे जाके मैं 100% पूरे स्कोर कर दूं 6 के 6, तो यहाँ पे मेरे को 3 बोनस अटेम्प्ट मिल जाएंगे, दैट विल बी 9। सो दिस इज ऑल्सो वन केस। कैन वी हैव एनी अदर केस? तो इफ आई लुक क्लोजली, जैसे 3 फिक्स करा, मान लो अगर मैं 6 पे पहुंचा ही नहीं, अगर मैं लेट्स से 6 पे नहीं पहुंचा, मे बी 1 का इंक्रीमेंट हुआ, मे बी लेट्स से 4 आया, तो कैन वी रीच दिस 24 नंबर? सो 3 + 4 कितना है आपके पास, 7,
24 माइनस 7 कितना बन गया आपके पास, दैट इज 17। 17 पे मेरा पहुंचने का एक ही तरीका है, 4 से डायरेक्ट जंप आप 3 का लो, 7 पे पहुंचो, और 7 से फिर से वही 100% वाला क्राइटेरिया मीट करके 3 का जंप लो और आप 10 पे पहुंचो। तो दैट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी। कैन वी हैव एनी अदर केस अपार्ट फ्रॉम दिस? 4 पे पहुंच के यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैन आई हैव एनी अदर केस? अब लास्ट एक पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हो कि 3 के साथ व्हाट इफ यहाँ पे 3 ही रहा, बट इसमें प्रॉब्लम है ना कि इस पर आप कभी भी 24 अटेम्प्ट्स पे पहुंच नहीं पाओगे, बिकॉज 3 + 3 ऑलरेडी सिर्फ 6 हुआ है। 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 18, बट आप यहाँ पे मैक्सिमम ही कितना ले जा पाओगे, यहाँ पे 6 ले जा पाओगे, 3 का जंप, और यहाँ पे 3 का जंप दैट इज 9, तो ये 15 ही जाएगा, तो ये पहुंच नहीं पाएगा। सो वी कैन सिंपली एरेज दिस पर्टिकुलर केस, दिस विल नेवर गिव मी अ टोटल ऑफ 24 अटेम्प्ट्स। नाउ in these 3 cases I have to maximize, right? So then he could have scored a maximum. I have to maximize the points. So मैं क्या ध्यान रखूंगा कि भाई नंबर्स पे डिपेंड करता है कि मैं पूरा का पूरा स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो आई विल स्टार्ट विद दिस वन, राइट? 3, 4, 7 एंड 10 अब मैं देखता हूँ कि कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज ये सिंपलेस्ट केस होगा। बिकॉज देखो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 3 से 4 का जंप हुआ, राइट? सो आपने क्या कर रखा होगा, 50% से अबव किया होगा, तो 2 आता है वो नंबर, 3 तो नहीं हुआ। सो 3 में से आपने 2 स्कोर करा, राइट? और एक में आपका 3 नेगेटिव हुआ, तो 2 × 10 20, और एक 3 का नेगेटिव 20 माइनस 3, दिस वुड गिव मी 70। देन यहाँ पे आए, अब इस 4 से 7 का जंप हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे स्कोर करें, बिकॉज वी आर एक्चुअली मैक्सिमाइजिंग। सो 4 में 4 का आपने पूरा स्कोर कर दिया, 4 × 10 कितना बन गया 40। इस 7 से भी 10 का जंप हुआ है, तो आपने सारे स्कोर कर दिए, दिस बिकम 70, और 10 में आपने पूरे के पूरे स्कोर कर दिए, आगे से हमें कोई मतलब भी नहीं है, तो ये 10 × 10 दिस बिकम्स 100। नाउ इफ आई ऐड ऑल दीज, ये फर्स्ट केस हमने किया है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये फर्स्ट केस। इफ आई ऑल ऐड अप ऑल दीज, तो कितना हो जाएगा 70, 40, दिस इज 110 प्लस 100, दिस इज 210 प्लस 17, दिस वुड गिव मी व्हाट 227। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, एंड जहाँ तक मेरे को देखने में लग रहा है, दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम केस। आई कैन गो हेड एंड चेक द अदर वंस ऑल्सो। लेट्स चेक फॉर दिस वन, मे बी 3 से 6, तो आई वुड से कि हाँ सारे के सारे स्कोर करें, तो लेट्स यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। सो 3 का 3 पूरा पूरा स्कोर करा, 30 पहुंचा। नाउ इस 6 में डिसाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 से नंबर चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब 50% भी आपने मीट नहीं करा होगा, तो उससे पहले तक मैक्सिमम आप कितना गोल स्कोर कर पाओगे, 3 से जस्ट नीचे, दैट इज 2 गोल स्कोर के होंगे। तो 2 पे आपको कितना मिला होगा 20, और 4 पे आपको 3 नेगेटिव हुआ होगा, तो 4 3 12, राइट? सो 20 माइनस 12, ये काफी कम हो गया आपका, कितना हो गया ये 8। देन इस 6 से 9 का जंप हुआ है, मतलब सारे के सारे स्कोर कर दो आप, 6 का पूरा पूरा 60, एंड फाइनली इस 9 में आप सारे स्कोर कर दो, ये कितना हो गया 90। बट अगेन आप रियलाइज करो 227 के कहीं भी ये क्लोज नहीं पहुंचने वाला है, तो आई कैन सिंपली स्किप दिस केस। नाउ लेट्स चेक फॉर द फर्स्ट वन। तो 3 में आप चेक करो, 3 में से 6 हुआ है, सारे के सारे स्कोर कर दिए, तो कितना पॉइंट्स मिल गया आपको 30। 6 से 7 हुआ है, तो क्या होगा, मैं बोल देता हूं कि लेट्स से इसमें से मैंने 5 गोल स्कोर करे, राइट? पूरे नहीं स्कोर करने, क्योंकि सिर्फ एक का जंप हुआ है। 5 स्कोर करे तो कितना बन गया 5 × 10 50, और 50 माइनस ऑफ 3, दैट इज कितना हो गया 47। अब 7 से 8 हुआ, तो अगेन सारे नहीं स्कोर करने, 6 स्कोर करे, तो 6 × 10 60, 60 माइनस ऑफ 3, 60 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाएगा 57। एंड यहाँ पे आपने सारे के सारे स्कोर कर दिए, तो 8 का 8 आपने स्कोर कर दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 8 × 10, दैट इज 80। सो इफ आई ऐड ऑल दीज, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 47 प्लस 57 प्लस 80, ये कितना हो गया आपका, ये भी देखो मेरे को कम ही लग रहा है, 47 प्लस 57, दिस इज 97, दिस इज 90 एंड 4 14, राइट? सो 90 एंड 14, दिस इज 104, और उसके बाद आपका 80 प्लस 30 110, सो ये कितना हो गया आपका 224। सो दिस एड्स अप टू 224। सो मेरा मैक्सिमम एडिशन कितना हो जाएगा फिर आपका दिस, राइट? 227। सो दिस विल बी माई आंसर, 227। आई कैन नॉट टेक दिस बियॉन्ड दैट, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर. Now let's move on to the final problem. Let's use a black color now.
Now it is given that Marshall scored the same number of goals in PS1 as Rashford did in PS3. So there are two people, we'll have to represent them. So 4 rounds for both of them. So first is for Marshall and other is for Rashford. It is given that Marshall scored the same number of goals in PS1, यहाँ पे जो goal scored है, as Rashford did in PS3, यहाँ पे जो goal scored है, attempt नहीं, goal scored दोनों का same है. Now, if Marshall scored 17 points in PS2, तो Marshall 17 points यहाँ पे है. अब देखो 17 points आप कैसे बना सकते हो, तो हमने ये पहले भी समझा हुआ है. यहाँ पे आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 होता है. 3 से ये मैक्सिमम आपका जंप कितना जा सकता है, 6 जा सकता है. तो या तो ये 3 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा. आप 17 किस केस में बना पाओगे? द इजीएस्ट केस जो आपको सेटिस्फाई होते हुए दिखेगा वो यही 3 है, राइट? बिकॉज 3 में क्या हो जाएगा, आप 2 10-10 मारोगे और एक छोड़ दोगे तो आपका -3 हो जाएगा, एंड 20 - 3 वुड बी 17. सो इफ यू गो हेड एंड ट्राई 4 and 6 के साथ कोई भी केस आपका फिट नहीं बैठेगा टू गेट दिस 70, राइट? ऑल्सो 6 के साथ भी नहीं आप सेटिस्फाई कर पाओगे. तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 10, 10 and 3 का केस है, राइट? नाउ इफ मार्शल स्कोर्ड 17 पॉइंट्स इन PS2, ये 17 में आपका ये मिल गया कि यहाँ पे आपका 3 का 3 है. बिकॉज यहाँ पे 3 का 3 ही है तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज नहीं हुआ, इसका ये मतलब हुआ. बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे उसने एक ही गोल स्कोर करा होगा. 0 नहीं कर सकता बिकॉज फिर उनको सेकंड चांस मिलता नहीं. स्टार्टिंग में कंडीशन दिया था कि एक प्लेयर आगे तभी पहुंचेगा जब उसने एटलीस्ट एक गोल स्कोर किया हो. तो यहाँ उसने एक ही स्कोर करा हो क्योंकि 2 पे तो 1 बढ़ जाता है, तो उसने 1 गोल यहाँ पे एक्चुअली में स्कोर किया है, राइट? तो यहाँ पे 1 गोल स्कोर्ड है. तो इसने क्या बोला था कि मार्शल ने जो फर्स्ट पेनल्टी शूटआउट में गोल स्कोर किया, एग्जैक्टली वही नंबर आपका क्या है, राशफोर्ड का PS3. तो यहाँ पे इसने एक ही गोल स्कोर करा है, ये मिल गया आपको. नाउ देन राशफोर्ड कुड हैव स्कोर्ड अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स इन PS4. यहाँ पे मैक्सिमम उसने कितने पॉइंट स्कोर किए हुए हैं. तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे मेरे को पहले तो ये चाहिए कि मैं मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट कर सकता हूँ, राइट? बिकॉज यहाँ पे वही आएगा जो यहाँ पे आएगा. ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस थर्ड राउंड में उसने एक ही गोल स्कोर करा है. तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ वो 50% वाला क्राइटेरिया भी मीट नहीं होगा, उससे नीचे ही है. तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आएगा वही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फोर्थ राउंड में पहुंचेगा. तो बेसिकली मैं चाहता तो हूँ मैक्सिमाइज करना, बट मैं इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर रिस्ट्रिक्टेड हूँ. वो वही आएगा जो यहाँ पे थर्ड राउंड में पहुंचेगा. तो थर्ड राउंड में मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ. क्या हो सकता है मैक्सिमम थर्ड राउंड तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? पीछे की कोई कंडीशन तो है नहीं. तो यहाँ पे राशफोर्ड ने 3 अटेम्प्ट किए और यहाँ पे इसने पूरा मीट कर दिया अपना 100%. तो यहाँ पे 6 अटेम्प्ट मिल गए और यहाँ पे उसको सिर्फ 9 अटेम्प्ट मिले. यहाँ 9 अटेम्प्ट में उसने सिर्फ 1 गोल स्कोर करा, तो उसका वही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रह जाएगा फोर्थ राउंड में भी, दैट इज 9. एंड यहाँ आके उस हीरो बन गया. हीरो कैसे बन गया कि उसने 9 के 9 पूरे क्या कर दिए, स्कोर कर दिए. तो इसीलिए द मैक्सिमम पॉइंट्स ही कुड हैव स्कोर्ड इन द फोर्थ पेनल्टी शूटआउट वुड बी 9 into 10 and that is 90. And this becomes the answer to the fourth and final problem, right? So this is a very nice set. एग्जाम के प्रेशर में this becomes very difficult because उसमें गलती होने के बहुत चांसेस हैं, right? So on a scale of 1 to 10, जैसा आप लोग बार बार पूछते हो, on a scale of 1 to 10 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको ये बोलूँ, so this is like difficult. This is one of the difficult set because this has room for a lot many errors. Right, so I would rate this somewhere around the, let's say 7 to 8 marks, approximately 8, because this is difficult, analytically सोचना पड़ेगा, right? So बहुत सारा इसमें डेटा था, बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट था. Again, if you have any doubts, you can just put that in the comments. I'll explain this in the comment section. जो भी आपको कैसा भी इसमें डाउट आता है. Thank you.